Yesterday we have seen this lex structure, which is important to generate that lexical analyzer. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो लेक्स टूल होता है वो इम्पोर्टेंट टूल है लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करने के लिए. बेसिकली लेक्स टूल है क्या, इसमें जो इनपुट है वो एक लेक्स प्रोग्राम लिखा हुआ है और लेक्स टूल अपने आप में एक लेक्स कंपाइलर है. ठीक है, लेक्स कंपाइलर को जो इनपुट प्रोग्राम मिल रहा है वो लेक्स इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ लेक्स इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं. इन कंबाइन वी से इट्स अ लेक्स प्रोग्राम. तो जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो हमारा लेक्स सोर्स प्रोग्राम है, दिस इज रिटन इन लेक्स लैंग्वेज. once it passed through this lex compiler, it generates this lex.yy.c. this is the C code. Because of extension it shapes with C, so this is the C code. Now to compile the C code we require C compiler. तो C कोड को कंपाइल करने के लिए lex.yy.c, इस C कोड को कंपाइल करने के लिए हमने यहाँ पे C कंपाइलर यूज किया है and it generates a.out. तो ये जो a.out है, this is nothing but it's a lexical analyzer. It is working as lexical analyzer. In the next step, this lexical analyzer a.out, here we have this input stream and it generates sequence of tokens. तो जो input stream है हमारे पास, input stream यहाँ lexemes हैं. Lexemes means to say sequence of characters that comes from the modified source code. तो वो जब हम पास करेंगे a.out से तो हमारे पास में sequence of tokens generate होंगे. तो इस तरह से इट्स अ क्रिएटिंग अ लेक्सिकल एनालाइजर विद लेक्स. तो यहाँ पे हमारे पास में जो कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से कॉन्फ़िगर हो रही है. 3 स्टेप्स प्रोसेस है. हाँ, it's a 3-step process. First is we are passing this lex source program through a lex compiler and it generates a C code which is lex.yy, and then this particular code is passing through C compiler and it generates a lexical analyzer. Once the input stream, which is a lexeme, it's a lexemes as well, it passes through this a.out, which is a lexical analyzer, it generates a sequence of tokens. So this is the way this is the 3-step process gone through, and we say it's a creating a lexical analyzer with lex. Now, when we have to write this lexical that program, we have to follow this syntax that I had already discussed earlier. Structure of lex program. This is the following form. We have a declarations. This declaration part is sometimes optional. Declaration or definition parts. Then we have a follow-up markers, and then we have a translation rules. Then we have a follow-up markers, and finally auxiliary functions, which are additional function. So this is important for us to find out exact logic that we are going to write in this segment, how to write these things. तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन पार्ट, जितने भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो, जितनी भी हेडर फाइल्स हैं आपकी, अगर हम सी प्रोग्राम के सिंटैक्स को अलाइन करते हैं लेक्स के साथ में, तो वहाँ पे आपके जितने भी हेडर फाइल्स हैं, जितने भी आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सारे पार्ट्स आपके इस मार्कर के ऊपर आ जाएंगे. ट्रांसलेशन रूल्स, वी हैव पैटर्न्स एंड एक्शंस, जो कल हमने डिस्कस किया था. हमारे पास पैटर्न्स होते हैं और एक्शन होते हैं. पैटर्न मीन टू से सपोज वी हैव सीक्वेंस ऑफ बॉबल्स. तो बॉबल्स हमारे पास 5 होते हैं इंग्लिश में, A-E-I-O-U. तो पैटर्न हमारे पास है बॉबल्स का, A-E-I-O-U. दीज आर द कैरेक्टर्स. एक्शन क्या होगा? प्रिंट एफ बॉबल. मीन्स टू से whenever that lex compiler detect this, okay, through that once it pass through a lexical analyzer, then once it detect this, okay, we have A, so printf is it's a bobble. तो एक्शन क्या होगा? जो A करेक्टर है वो बॉबल है. इसी तरह से डिजिट्स हो सकता है 0 to 9. तो जब भी हमारी डिजिट्स कॉन्फ़िगर होगा, जब भी डिजिट्स कंपाइल होगा, उस केस में
it will say, okay, it's a digit. So this is very, very important for us, that how to make sure what are the things. 1 minute. Okay, fine. So we have to make sure what sort of patterns is exactly going and what sort of action is going to be take. So this is the logics that we have to build when we have to write this program. So each pattern is a regular expression which may use the regular definitions of the declaration section. तो जो भी declaration section है उसके जो regular definitions होते हैं उनको ये जो segment है वो use करता है. The actions are fragments of code typically written in C. जैसे मैंने आपको बताया था printf bobble. If it recognize that we have a small a or capital A, it's a bobble. So typically जब actions को लिखने की बात आती है तो वो C language के syntax को follow करते हैं. Although many variants of Lex using other languages. So as time goes on, we will discuss those things also. The third section that holds whatever the additional functions are used in the actions. जैसे इस केस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें मालूम है कि मेन जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम एंट्री पॉइंट मानते हैं एग्जीक्यूशन के लिए. वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा हो, चाहे वो सी में हो या जावा में हो. अभी क्योंकि यहाँ पे सी फ्रेगमेंट ऑफ कोड की बात की जा रही है तो हमें मेन फंक्शन चाहिए विच will be as entry point for the execution of the program. तो वहां पे जो मेन फंक्शन है वो एंट्री पॉइंट है. यहाँ पे लेक्स लैंग्वेज के अंदर जनरली वी यूज दैट along with YYLex, which is also considered as the entry point for a Lex segment. तो वो अभी हम प्रोग्राम के मदद से समझने की कोशिश करेंगे. So these functions can be compiled separately and loaded with the lexical analyzer. तो ये जो functions होते हैं हमारे main हो गया, YYLex हो गया, YYWrap हो गया, ये functions जो होते हैं ये हमारे auxiliary functions होते हैं और ये जो है separately compiled होते हैं and loaded with the lexical analyzer. तो यहाँ पे जो important चीज आती है वो ये आती है कि हमारे पास में okay fine 1 minute. Okay, now we have to just consider this part, that what sort of things we just involving over here. सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन को इन्वॉल्व किया है. डिक्लेरेशन के बाद में ट्रांसलेशन रूल्स आए हैं और उसके बाद में ऑक्सिलरी फंक्शंस आए हैं. तो डिक्लेरेशन में मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया, आपकी हेडर फाइल्स हो सकती हैं या आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकते हैं, उनकी डेफिनीशन पार्ट हो सकता है. उसके बाद ट्रांसलेशन रूल्स में हम पैटर्न्स और एक्शंस को एक साथ लिखते हैं. पैटर्न्स में जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिख दिए, सीक्वेंस ऑफ बॉबल लिख दिए. तो जैसे ही बॉबल रिकॉग्नाइज होगा, इट printf इट्स अ बॉबल, कैरेक्टर इज अ बॉबल, और कंसोनेंट और डिजिट्स और समथिंग एल्स, तो इट्स अ रिजर्व वर्ड एज वेल. तो वो सारी जो डेफिनेशंस होती हैं, जो रेगुलर डेफिनेशंस होती हैं, वो ट्रांसलेशन रूल्स के अंदर लिखी जाती हैं. और उसके बाद में जो मार्कर जो लास्ट में हमारा थर्ड सेक्शन होता है वो ऑक्सिलरी फंक्शंस का होता है, जिसमें मेन फंक्शंस लिखा जाता है, उसके साथ और यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शंस लिखे जाते हैं. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है लेक्स प्रोग्राम का. लेक्सिकल एनालाइजर क्रिएटेड बाय लेक्स बिहेव इन कंसर्ट विद द पार्सर. तो ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है क्रिएटेड बाय लेक्स, इट बिहेव इन कंसर्ट विद द पार्सर. क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेज होता है वो सिंटेक्स एनालाइजर का स्टेज होता है और वो जो होता है वो पार्सर होता है. तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझना है. When called by the parser, the lexical analyzer begins reading its remaining input. जैसे ही parser से request आता है वैसे ही lexical analyzer जो है वो tokens को process करना शुरू कर देता है. तो यहाँ पे एक चीज तो ये theoretical point of view से हो गया. अब मैं आपको थोड़ा सा इसका programming concerns बताता हूँ. 1 minute. I have to share new screen, so just wait for a while. Here we have 1 minute.
Okay, fine. So we will see fine. Are this screen is available for you? Anyone just reply me. This flex window is open. Everyone is able to see this window? Yes, sir. Yes, sir. No, you are not able, or you are able to see this. Hello. Able, sir. Okay, okay, fine, fine, fine. Okay. See, this is that structure I am so 1 minute. Okay, fine. See, here is a marker sign that we start with. So this is the segment where we have this declaration and definition part. Okay. So here we have this header file hash include studio.h. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया भी था, जो segments है आपका, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये देखना है कि कौन से सेक्शन में आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप सी प्रोग्राम को काफ़ी कुछ यहाँ यूज़ कर रहे हो, उसके सिंटैक्स को। यहाँ आपने हेडर फाइल studio.h को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मेल के थ्रू लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लैक्स विंडोज करके होगा, तो उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जब भी हम इस प्रोग्राम्स को बनाया करेंगे, समझा करेंगे प्रैक्टिकल लैब्स में ऑल्सो, तो फिर आप उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर फ्लैक्स फॉर लेक्स एंड YACC, ठीक है। इस तरह से वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल के बाद यहाँ पे हमने वॉवल्स और कंसोनेंट्स को लिया हुआ है और उन्हें 0 असाइन किया हुआ है, और इस पार्ट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे वॉवल्स और कंसोनेंट्स को हमने डिफाइन कर दिया है और हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो पार्ट हमारा काम कर रहा था, ये डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर काम कर रहा था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है, ये ट्रांसलेशन रूल्स का पार्ट आता है बेटा। देखिए ट्रांसलेशन रूल्स यहां तक हैं, दिस इज द ट्रांसलेशन रूल पार्ट, क्योंकि यहां हमें पैटर्न्स मिल रहे हैं और हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि आप देखो AEIOU कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर्स जो हैं, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो जब भी ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और ये वाली लाइन आपकी जब भी कंपाइल करेगा कंपाइलर, तो उसको पता होगा कि इनमें से कोई भी करेक्टर अगर हमें मिलता है, हम जैसे ही इनपुट कराएंगे, एंटर कराएंगे करेक्टर्स को, तो इट चेक्स फ्रॉम हेयर। जैसे ही हमें इनमें से कोई भी करेक्टर मिलता है, तो जो एक्शन परफॉर्म होगा, वो एक्शन परफॉर्म होगा बॉबल, इज अ बॉबल। आपने करेक्टर इनपुट किया और आपको एक्शन परफॉर्म मिल गया बॉबल। इनके अलावा अगर कोई भी करेक्टर आपका एंटर होता है यूजर के थ्रू, तो वो कंसोनेंट कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ वॉवल प्लस प्लस का मतलब ये है, ये इंक्रीमेंट करेगा आपके जो वॉवल है उसको, काउंटिंग को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो क्योंकि स्टार्टिंग में इसको हमने 0 असाइन किया है, सो इट विल जस्ट काउंट दोज नंबर ऑफ वॉवल्स। तो ये प्लस प्लस आपका जो है वो +1 से इंक्रीमेंट करेगा, ये कंसोनेंट +1 से इंक्रीमेंट करेगा। जैसे ही आपका इतना पार्ट कंप्लीट हुआ, तो ये जो पार्ट आपका होता है बेटा, ये आपका ट्रांसलेशन रूल्स के अंदर आ जाता है, जो अभी हमने वहां देखा था। इसमें भी ये जो पोर्शन है, ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये पोर्शन आपका बेटा पैटर्न कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये एक्शंस कहलाता है। इसी तरह से ये वाला पोर्शन आपका पैटर्न हो गया, और ये वाला जो पोर्शन आपका हो गया, ये एक्शंस हो गया। यहाँ पे आपने इस सेगमेंट को क्लोज कर दिया। तो अभी तक हमने जो 2 सेगमेंट क्लोज किए हैं, उसमें एक सेगमेंट तो हमने ये क्लोज किया है, जो कि हमारा डिक्लेरेशन था सेक्शन। उसके बाद दूसरा हमने जो सेक्शन क्लोज किया है, वो बेटा ये वाला सेक्शन क्लोज किया है, जो कि हमारा है ट्रांसलेशन रूल्स, ठीक है, जिसमें पैटर्न्स और एक्शन को फॉलो अप में लिखा जाता है।
तो इस तरीके से ये दो चीजें हमारी हो गई। किसी को इस इतने पार्ट में प्रोग्राम के कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये आज फर्स्ट प्रोग्राम आप इस तरह का देख रहे हो, तो सिंटेक्स से आप आसानी से अवेयर हो जाओगे जैसे जैसे हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, that int yy_wrap, 1 minute. We have this next part which is known as that auxiliary functions. तो auxiliary functions में हमारे पास में मेन फंक्शन भी होता है, यूजर फंक्शंस भी होते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं। सभी फंक्शंस हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर आप देख रहे होगे तो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज int yy_wrap। अब इस int yy_wrap का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए yy_wrap जो फंक्शन होता है बेटा, वो या तो 1 रिटर्न करता है या 0 रिटर्न करता है। ठीक है, तो 1 ये रिटर्न तब करता है जब इनपुट हमारा एग्जॉस्टेड हो जाता है, तब तो ये 1 रिटर्न करता है। और ये 0 तब रिटर्न करता है जब अभी आपको फर्दर प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न होती हैं, 1 रिटर्न होता है या 0 रिटर्न होता है। 1 रिटर्न तब होता है जब इनपुट पूरा प्रोसेस हो चुका है, अब कोई भी कैरेक्टर लेफ्ट नहीं रह गया, इसीलिए इसे रैप बोलते हैं, बाय बाय रैप। और 0 रिटर्न ये तब करता है जब हमारे पास में अभी इनपुट में प्रोसेसिंग बची हुई है। इनपुट प्रोसेसिंग का मतलब वो जो स्ट्रीम है जो कि लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू पास हो रही है। तो जब तक कि वो स्ट्रीम में एक भी कैरेक्टर लेफ्ट रहेगा, इसका जो रिटर्न वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। जैसे ही EOF मिल जाएगा, एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा, वैसे ही इस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे भी हम जानते हैं कि बूलियन के अंदर 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो इस तरह से इस फंक्शन की जो वर्किंग है वो होती है। इसके बाद देखिए मेन फंक्शन हमेशा वी ऑल यूज इन सी प्रोग्राम्स एज वेल इन जावा प्रोग्राम्स हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट बोला जाता है, जो कि मैंने बताया था फॉलो अप विद द yy_lex होता है इन दिस लेक्स पर्टिकुलर लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने सिंपल 2 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है, हमने एंटर करेक्टर लिखा है। यानी कि हम जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, इस प्रोग्राम को बिल्ड करके जब डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉम्प्ट आए, जो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन आएगी, उस पर लिखकर आएगा एंटर करेक्टर। अब आप यूजर करेक्टर देगा थ्रू कीबोर्ड। अगर उसने स्मॉल a लिख दिया तो यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म होगा वो एक्शन परफॉर्म होगा printf इज अ वोवेल। अगर उसने लिख दिया s इज नॉट अ वोवेल, printf इज अ कांस्टेंट कंसोनेंट। तो इस तरह से आपके एक्शंस परफॉर्म होंगे। यहाँ पे printf में देखिए हमने वोवेल %d लिखा हुआ है एंड कंसोनेंट %d लिखा है, एंड फाइनली वी आर जस्ट प्रिंटिंग दैट स्ट्रिंग दैट अकॉर्डिंग टू दिस printf एक्शन। तो ये जो पूरा पर्टिकुलर प्रोग्राम है, अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है दैट कम्स अंडर ऑक्सिलरी फंक्शंस। तो ये जो पार्ट है ऑक्सिलरी फंक्शन का पार्ट है बच्चों। ये जो पार्ट है हमारा दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन रूल्स, और ये जो वाला पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन। तो अभी जो हम थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर लेक्स का देख रहे थे, उसको काफी हद तक हम लोगों ने इसको एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू समझा है। ठीक है, जिसमें हमने देखा वी हैव 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज और डिक्लेरेशन, सेकंड वन इज द ट्रांसलेशन, एंड थर्ड वन इज दिस ऑक्सिलरी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो टूल्स पे जाना होता है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम को ओपन करना है तो या तो आप यहाँ से न्यू करके लेक्स ओपन कर सकते हो, एडिटर ओपन हो जाएगा, या फिर अगर आपको आपकी फाइल कहीं सेव है ऑलरेडी, आप प्रोग्राम लिख चुके हो, तो ओपन करके आप उस डायरेक्टरी पाथ पर जाके भी इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जब इसको कंपाइल कराना होता है तो ये टूल, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट कीज भी आप देख सकते हो। लेक्स फाइल कंपाइल के लिए Ctrl+1 यूज करते हैं, लेक्स बिल्ड के लिए Ctrl+2 यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपके ये कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं जो कि आप यूज करते हो। तो वेरी फर्स्ट यू विल कंपाइल दिस लेक्स फाइल कंपाइल, ये कंप्लीट हो गया। देन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस लेक्स बिल्ड,
This is also completed. And finally, once you just execute exe directly, तो ये prompt खुल जाएगा. तो अब आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो. जो आपका डायरेक्टरी पाथ होता है, फ्लैक्स विंडोज में जाके यहाँ पे आपका जैसे एडिट प्लस पोर्टेबल में मैंने फोल्डर बना रखा है लेक्स फाइनल. तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो. एंटर करेक्टर आपने मान लीजिए कैपिटल ए दिया. 1 minute, I just want to see whether this prompt is visible. Okay, तो यहाँ पे कैपिटल ए है, एंटर करेक्टर. सो इट्स अ बॉबल. जेड है, इट्स अ कंसोनेंट. स्मॉल ए है, इट्स अ बॉबल. तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है. तो मेन चीज ये है कि whenever we just want to use these concepts, this is important for us. ये देखिए इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बन जाएगा. जैसे ही प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो आप इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे अपना यूजर इनपुट दे सकते हो. इज अ बॉबल, स्मॉल ए इज अ बॉबल एंड कैपिटल जेड इज अ कॉन्सोनेंट, स्मॉल जेड इज अ कॉन्सोनेंट. तो परफेक्टली आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है. 1 minute, I just return back to the slide. Okay, fine. So this is the way that we generally use this lax program structure, which is very, very important for us. Now come to the next part. देखिए अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, you have to just gone through all the concepts and make sure these are the things are very, very important for you. अब लेक्स के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो सिंटेक्स एनालाइजर का करना है, जो कि सेकंड आपका फेज होता है, जिसको हम पार्सर भी बोलते हैं. और हमने उसको डिस्कस भी किया था जब हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस को ओवरव्यू कर रहे थे. 1 minute. We have to just gone through that detail also. This is the syntax analyzer. Just we have to use this symbol table notation. So symbol table के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें टोकन का नाम स्टोर होता है और आपकी जो टोकन की एट्रीब्यूट वैल्यू होती है वो स्टोर होती है. तो उसको भी आप जो है यूज करते हैं जब आपको किसी भी फेज में इंफॉर्मेशन लेनी होती है टोकन के रिगार्डिंग. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो फेज आता है वो सिंटेक्स एनालिसिस फेज आता है. इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो रोल ऑफ पार्सर होता है वो क्या होता है. एक बार आप ये डायग्राम अगर देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एक सोर्स प्रोग्राम है. सोर्स प्रोग्राम यहाँ पे एक ब्लॉक अभी इन्होंने नहीं बनाया है, वो ब्लॉक है प्री प्रोसेसर ब्लॉक. तो प्री प्रोसेसर ब्लॉक से जब मॉडिफाइड हो जाएगा सोर्स प्रोग्राम, तब वो लेक्सिकल एनालाइजर के पास पहुंचेगा in form of sequence of statements, statement itself in a form of number of words or number of characters. तो लेक्सिकल एनालाइजर के पास पहुंचता है और लेक्सिकल एनालाइजर एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्सर जो है टोकन को प्रोसेस करता है. फर्दर गेट नेक्स्ट टोकन यहाँ पे लिखा हुआ है. पार्सर से जो रिक्वेस्ट है वो लेक्सिकल एनालाइजर के पास जा रहा है और लेक्सिकल एनालाइजर उसको टोकन फॉर्म में जनरेट करके पार्सर को भेज रहा है. तो ये जो है प्रोसेस हमारा इस तरह से रिपीटेड चलता रहेगा जब तक कि जो इनपुट स्ट्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है. ठीक है, उसके बाद में अब जो पार्सर के लिए आउटपुट है वो पार्स ट्री है बेटा. ठीक है, जो कि हमारा सिंटेक्स ट्री भी कहलाता है. एंड रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड, जहाँ पे फिर हम बात करते हैं सिमेंटिक का, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का, कोड ऑप्टिमाइजेशन का और कोड जनरेशन का. और यहाँ पे ये जो तीनों हमारे जो फेजेस हैं ये सिंबल टेबल से भी कनेक्ट है. आप चाहो तो इसको एरर हैंडलर से भी कनेक्ट दिखा सकते हो एग्जाम्स में. तो ये जो आपका जो ब्लॉक डायग्राम है, पोजीशन ऑफ ए पार्सर इन कंपाइलर मॉडल, इट ऑलवेज कम्स इन फॉलो अप विद द स्कैनर. तो ये जो पार्सर होता है ये स्कैनर के बाद में फॉलो अप में आता है. So as I said you many times that we divide it generally in some of the phases. तो वहाँ पे हमें इस चीज को
देखना पड़ेगा कि जो हमारे लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटेक्स एनालाइजर है और सिमेंटिक एनालाइजर है, ये हमारे जो हैं वो फ्रंट एंड पर आ रहे हैं, और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजर ये हमारे नेक्स्ट एंड पे आ रहे हैं. So here we have some of these grammars rules, how to treat with that. I am just explaining representative part of that grammar. Some of the grammars that we will examine in this chapter are presented here for ease of reference. जैसे कि अभी हमें कुछ ग्रामर के ऊपर, सिंटेक्स के ऊपर काम करना होगा, तो ग्रामर के रूल्स को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ये जो कोड सेगमेंट्स है आपका, ये सारे आपको कहीं ना कहीं ग्रामर के साथ में वर्क करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस के साथ में वर्क करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. देखिए इसमें लिखा हुआ है, द मोस्ट इफिशिएंट टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड्स वर्क only for the sub classes of grammars, but several of these classes, particularly LL and LR grammars, are expressive enough to describe most of the syntactic construct. तो देखिए क्या होता है, जैसे ट्री स्ट्रक्चर होता है, तो ट्री स्ट्रक्चर में आप जो ट्रेवल करते हो वो या तो आप टॉप टू डाउन करते हो या डाउन टू टॉप करते हो. तो उसमें आपकी जो टेक्निक होती है या तो टॉप टू बॉटम होती है या बॉटम टू टॉप होती है. तो यहाँ पे क्योंकि हम ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको इन टेक्निक्स को समझना होगा. इन दिस चैप्टर वी एज्यूम दैट द आउटपुट ऑफ द पार्सर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्स ट्री for the stream of tokens that comes from the lexical analyzer, जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ. In practice, there are number of tasks that might be conducted during parsing, such as collecting information का collection हो गया about the various tokens into the symbol table, performing type checking as well, and other kinds of semantic analysis and generating intermediate code. So we have to just operate all these things together. ये सारी चीजें हमें सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालाइजर में करनी है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर की ब्रीफिंग्स होना जरूरी है, जो कि हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी पढ़ा था जब हम पार्सिंग के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर बात करते थे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. तो उन पार्सिंग टेक्निक्स पर भी हमें इसमें इस पर्टिकुलर फेज के अंदर स्टडी करना होगा. यहाँ पे देखिए इन्होंने एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस इन द फॉलोइंग ग्रामर को बताया हुआ है. तो ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं. यू आर अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्शन रूल्स. तो इन प्रोडक्शन रूल्स में की मदद से कई बार हमें जो है टॉप से बॉटम और बॉटम टू टॉप ट्रेवल करना होता है. कई बार जो है हमें इनसे जो है स्ट्रिंग्स भी जनरेट करनी होती हैं. तो ये सारे काम इन प्रोडक्शन रूल की मदद से होते हैं. So this is important that you should aware about the syntax of these all the things. अब यहाँ पे syntax error handling की बात की जाती है. सिंटेक्स एरर के बारे में चिरायू ने शायद मुझे पिछले से पिछले क्लास में बताया था कि सर जो सिंबॉलिक एरर्स होती हैं तो वो एरर्स हमारी सिंटेक्स एरर्स कहलाती हैं, जिसमें सिंबल्स मिसिंग हो जाते हैं या प्रॉपर फॉर्मेट हम यूज़ नहीं कर पाते जो गिवन फॉर्मेट होता है. तो उसी तरीके के कॉन्सेप्ट की हैंडलिंग हम सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर करते हैं. और इसमें जो है हमारे पास कुछ यहाँ पे इन्होंने जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स दैट कैन अकर एट डिफरेंट लेवल्स. तो यहाँ पे जैसे लेक्सिकल एरर्स हमने पिछले फेज में बात की थी, मिस स्पेल्स हो जाता है, उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जो इफ था उसको उन्होंने FI लिखा हुआ था, फाई लिखा हुआ था. तो वो टैकलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है लेक्सिकल के लिए. Include misspelling of identifiers, keywords, operators. For example, the use of an identifier ellipse size instead of ellipse size and missing quotes around text intended a string. अब देखिए यहाँ कितनी मतलब एक चीज़ आपने देखी कि यहाँ string को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं. तो इस तरह के एरर्स भी हमारे अगर आते हैं जहाँ पे मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स है, कीवर्ड्स है, ऑपरेटर्स है, तो देयर विल बी एन इशू. इसी तरह से जब हम सिंटैक्टिक एरर्स की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स मिस स्पेल्ड सेमीकोलन्स, वही वाली बात थी, और एक्स्ट्रा और मिसिंग ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस या फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको. आपने ओपन फ्लावर ब्रैकेट तो कर दिया बट क्लोजिंग नहीं किया. अभी जो पिछला प्रोग्राम हमने देखा था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए, उसमें हमने देखा था कि जहाँ पे हमने ब्रेसेस ओपन किया है, एक बार बॉडी डेफिनेशन कंप्लीट होती है उसके बाद उसको हमें क्लोज करना होता है.
किसी भी प्रोग्राम में अगर आप इस तरह से इन ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं और उसे क्लोज नहीं करते तो फिर वहां पे सिंटैक्टिक एरर्स आपको मिलती हैं. Another example in C or Java, the appearance of a case statement without an enclosing switch is a syntactic error. तो switch case में भी हमें ये पता लगता है जो कि हमने यूज किया होगा कि without enclosing switch अगर हम यूज कर रहे हैं तो it's a syntactic error. So next one is the semantic का इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है which is type mismatching error, जो कि compatibility of data types की भी बात होती है. उसके अलावा type mismatching की भी बात होती है, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की बात होती है. तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे सिमेंटिक एरर्स के अंदर आते हैं. फॉर एग्जांपल द रिटर्न ऑफ ए वैल्यू इन ए जावा मेथड विद रिजल्ट टाइप वॉइड. तो ये एक उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है विच इज हैविंग दैट सिमेंटिक एरर्स. इसके अलावा देयर इज अनदर एग्जांपल विच इज ए लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स कैन बी एनीथिंग. इफ देयर इज एरर इन द लॉजिक, so you may say can be anything from the incorrect reasoning on the part of the programmer to use in a C program of the assignment operator instead of the comparison operator. तो यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया कि आपने जो है वो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और इसको इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं. ठीक है, कंपैरिजन में ये यूज होता है. तो मान लीजिए आप कहीं पे क्लॉज में चेक कर रहे हो A इक्वल्स टू B और आपने वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो एक तरह से वो लॉजिकल एरर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको दो ऑपरेंट्स को चेक करना है वेदर दोज ऑपरेंट्स आर इक्वल और नॉट. but you are putting by human error you can say you are putting just assignment operator over there. तो वहां पे आपका ये जो सिग्निफिकेंस इस तरीके की जो चीज होगी वो लॉजिकल एरर्स के अंदर आती है. द प्रोग्राम कंटेनिंग असाइनमेंट में बी वेल फॉर्म्ड, however it may not reflect the programmer's intent. So that's in general. So the precision यहाँ पे एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज के बारे में एक ये शॉर्ट नोट दिया हुआ है. देखिए, बुक रीडिंग जितनी भी चीजें मैं आपको बुक के मदद से समझा रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे दो मोड्स दिए हुए हैं. एक तो पैनिक मोड रिकवरी दिया हुआ है और एक ये फ्रेज लेवल रिकवरी दिया हुआ है. तो पैनिक मोड रिकवरी विद दिस मेथड on discovering an error, the parser discards input symbols one at a time. Parser जो है वो input symbols को discard कर देता है at a time until one of the designated set of synchronizing token is found. So with this method, on discovering an error, the parser discard input symbol one at a time until one of a designated set of synchronizing token is found. तो देखिए इसमें क्या पर्पस है कहने का कि पैनिक मोड रिकवरी में क्या होता है कि जैसे कि कोई आपका टोकन है, मान लीजिए कोई आइडेंटिफायर है, आपने एरिया नाम का एक आइडेंटिफायर बनाया है प्रोग्राम में. अब उस एरिया में आप अच्छी तरह से जानते हो कि आइडेंटिफायर में कभी भी हम स्पेस, उसके करेक्टर्स के बीच स्पेस नहीं दे सकते. हम ऐसे नहीं लिख सकते एरिया को कि पहले हमने ए लिख दिया फिर स्पेस दे दिया फिर हमने REA लिख दिया. जब भी हम आइडेंटिफायर के नाम को लिखेंगे तो हम उसको एरिया लिखेंगे और बीच में कोई भी वाइट स्पेस मौजूद नहीं होगा. तो पैनिक मोड रिकवरी में ये चीज देखी जाती है जब टोकन के ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि वो ये मानता है कि जैसे ही आपने कोई रिजर्व वर्ड या कोई आइडेंटिफायर या कोई ऑपरेटर आपने यूज किया है प्रोग्राम के अंदर, तो जैसे ही उसको स्पेसिंग मिलेगी वो उसको एक अलग ही कैटेगरी में रिकॉग्नाइज कर लेगा. ए को वो आइडेंटिफायर मान लेगा. ठीक है, जबकि एक्चुअल में जो आइडेंटिफायर प्रोग्राम के अंदर है वो एरिया आइडेंटिफायर है. तो जैसे ही उसे व्हाइट स्पेस मिलता है वो उसको सेपरेट कर देता है. तो इस चीज को रोकने के लिए पैनिक मोड रिकवरी होती है जो कि इस चीज को सॉर्ट आउट करती है कि आपके पास में जब तक कि डेजिग्नेटेड सेट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड टोकन फाउंड नहीं होता तब तक कि ये जो है उसको नहीं वो करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. द सिंक्रोनाइजिंग टोकन्स आर यूजुअली डिलिमिटर्स. अब डिलिमिटर्स कल मैंने बताया था, व्हाइट स्पेस इज अ डिलिमिटर, कोलन इज अ डिलिमिटर, सेमीकोलन, एज आई एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे,
in the date of birth format, you use colon sometimes you use forward slash. So this depends. Sometimes you use hyphen. So this depends on what sort of delimiters you are using. So all these recovery is based on whether that delimiter is found or not. जैसे ही वो मिल जाएगा वो उसको सेपरेट कर देगा. तो ये जो इम्पोर्टेंस होती है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है सेमी कोलन और क्लोजिंग फ्लावर ब्रैकेट. ये एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. whose role in the source program is clear and unambiguous. Unambiguous का मतलब है कि discrete होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. डिस्क्रीट मतलब एक प्रॉब्लम के ऐसा ना हो कि दो तरह के सॉल्यूशन अलग अलग, एक ही प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन पॉसिबल हो. जैसे आपने एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में पढ़ा था, वहां आपके दो ट्री बन जाते थे, तो आप कहते थे कि ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है. तो अनएम्बिगुअस नेचर होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए. तो इस तरीके से ये पैनिक मोड रिकवरी जो है काम करता है आपका. इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है phrase level recovery. On discovering an error, a parser may perform local correction on the remaining input. That is, it may replace a prefix of the remaining input by some string that also the parser to continue. A typical local correction is to replace a comma by a semicolon, delete an extraneous semicolon, or insert a missing semicolon. These are all sorts of recovery possible. The choice of local correction is left to the compiler designer. ये designer के ऊपर होता है कि वो syntax में किस तरह के corrections को avail करता है. Of course, we must be careful to choose the replacements that do not lead to infinite loops, as would be case, for example, if we always inserted something on the input ahead of the current input symbol. So these are the things, these are the scenarios where we have to deal with this phrase level recovery. Phrase level replacement has been used in several error repairing compilers, as it can correct any input string. So once we talk about this generally works on the syntax of that program. It measures drawback its difficulty. It has in coping with the situation in which the actual error has occurred before the point of detection. तो जितने भी जितना इससे आपको अंदाजा लगा होगा, फ्रेज लेवल रिकवरी जो होती है वो एक लोकल प्रीफेस में काम करती है रादर देन ग्लोबल प्रीफेस के अलावा. बाकी सिंटेक्स के ऊपर इसका फोकस ज़्यादा होता है. तो इस तरीके से ये आपके रिकवरी स्ट्रेटजीज इसमें दिए हुए थे. And tomorrow we will come with more discussion on syntax analysis and its significance. Thank you very much. If you have any doubt, please ask me. Okay, thank you very much. Have a nice day.